हाय गाइस, मेरा नाम कल्पना शर्मा है। मैं मंडी गोविंदगढ़ भादला में रहती हूँ। मेरा शुरू से ही सपना था कि मैं बड़ी होकर एक डांस कोरियोग्राफर बनूँ। मेरे मम्मा बहुत स्ट्रगल करते हैं। मैंने इसको मद्देनज़र में रखते हुए मेरा ये सपना जागा। मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम रेड कलर पब्लिक स्कूल है। तरफ पहला देखो एक बारी। हाँ जी, जिमें राजे लिखा हुआ है 83 मल्टीप्लाई 23, यही दिया गया ना आपको। तो आप लोगों ने क्या करते हो, 83 को इस तरह मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो। ऐसे ही करते हो ना। सबसे पहले आप 3 को 3 के साथ करते हो, 9 हो जाता है। फिर आप 3 को 8 के साथ, उसी तरह नीचे आप मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऐसे ही करते हो ना। अब न्यू वे देखो, इसे हमने कैसे करना है वैदिक मैथ के अकॉर्डिंग। जैसे हमें दिया गया 83 मल्टीप्लाई 23, यही दिया गया ना। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ओके, तो 2 8 जार कितना होता है 16। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 16। उसके बाद हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 को 8 के साथ और 2 को 3 के साथ। ठीक है, 3 8 जार कितना होता है 24। 24 लिख लेंगे और 3 2 जार कितना होता है 6।
24 प्लस 6 कितना आ जाएगा 30। 30 आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, जीरो यहाँ पे लिख देंगे। जो हमारे पास 10th डिजिट है 3, वो 6 के ऊपर हम क्या लिख देंगे, कैरी। ठीक है, उसी तरह फिर हम इन दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 3 कितना होता है 9। उसके बाद हमने क्या करना है, इसे 9 को इसी तरह उतार लेना है, जीरो को भी। 6 प्लस 3 कितना होता है 9 और 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1909। क्लियर है। अगर हम इसे दूसरी तरह चेक करेंगे तो देखो हमारा आंसर कैसे, 83 मल्टीप्लाई 23, यही था ना। 3 3 9, 3 8 24। क्लियर है। मल्टीप्लाई 2 3 6, 2 8 16, सो 9, 6 और 4 10, 6 और 2 8। हाँ जी, मैं मिसेस निर्मला देवी ਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰੀਅਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਮਹੇੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ 8th ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਂਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਰਾਊਂਡ ਜੋ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਕੋਈ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਪਨਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰੀਅਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਡਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਉਸਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਭਾਗ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਲਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੈਚਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ। ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਗੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂट्स ਤੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। जब मैं घर पर फ्री होती हूँ तो मैं अपने डांस की प्रैक्टिस करती रहती हूँ। टीवी में भी देखते हुए भी डांस करती हूँ। मैं किचन में भी काम मम्मा के साथ हेल्प कराते हुए डांस की प्रैक्टिस करती रहती हूँ। गेम्स खेलती हूँ अपने दोस्तों के साथ।
उसके बाद मैं अपना वर्क कंप्लीट करती हूँ स्कूल का। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले वॉकिंग पे जाती हूँ। मैं थैंक्स करती हूँ मेरे मम्मी पापा का, जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। आज उन्हीं के कारण मैं फाइनल तक पहुँची। नमस्कार जी, मेरा नाम हेमलता है और मेरे हस्बैंड का नाम दीपक शर्मा है। मैं शॉलों का काम करती हूँ, सेफ्टी वर्क का। तो मतलब इसी में मेरा लेना, यहाँ पे देना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। इसी के मद्देनज़र रखते हुए मेरी बेटी और मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे के साथ मिलके बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मेरी बेटी को शुरू से ही बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मम्मा
मुझे डांस करना है। छोटे छोटे मतलब जब स्कूलों में जाती थी और बच्चों को देखते हुए वो भी इसमें भाग लेना चाहती थी कि मुझे ये वाला डांस करना, वो वाला डांस करना, ये कॉस्ट्यूम लेना। उस चीज़ को मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, फिर भी मैं कोशिश करती थी कि मेरा बच्चा किसी से कम ना रहे। तो फिर मैं उसी चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती थी कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा मतलब जब मेरी मैरिज हुई है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ रही है। जब मेरी बेटी होने वाली थी, 7 महीने की प्रेग्नेंट थी मैं जब यहाँ पे आ गई। इसके फादर यहाँ पे नहीं थे। 7 साल तक मैंने इसके अकेले ही पालन पोषण करा था। तो इस चीज़ को मैंने सोचा था कि मेरी बेटी है, हम दोनों कुछ करके दिखाएंगे कि बेटियां कुछ कर सकती हैं, कि अपनी बेटी को मैं ऐसा प्लेटफार्म दूंगी कि वो कुछ कर सके, मेरा नाम रोशन करे और अपनी फैमिली वालों को भी नाम रोशन करे। कि उनको ये लगे कि हम एक मतलब उनको मतलब गलत टाइम पे हमने उनको छोड़ दिया और हम उनका साथ नहीं दे रहे हैं। इनके मतलब दादा श्री या दादी श्री कोई भी थे तो उन्होंने मतलब साथ बिल्कुल नहीं दिया था। मैंने खुद ही स्ट्रगल करा था। तो मैं चाहती थी ये जो मुझे मतलब धक्के मिले हैं मेरी बेटी को ना मिले। तो ये छोटे छोटे इसको खेल का बड़ा मतलब डांस का शौक था। तो छोटे छोटे डांसों में स्कूल में छोटे छोटे फंक्शन होते थे तो उसमें मैं पार्टिसिपेट कराती थी। सबसे पहले इसने 3rd क्लास में मतलब पार्टिसिपेट करा था। तो वो था ये वतन मुझे आबाद रहे तू, ये गाने पे इसने सॉन्ग पे डांस करा था जब 3rd क्लास में थी। तो ये इसकी 2nd पोजीशन आई थी तो बड़ा मुझे प्राउड हुआ था, बहुत अच्छा लगता था। टीचर्स भी अप्रिशिएट करते थे कि मैम आपकी बेटी कर सकती है। तो मुझे भी लगा मेरा बच्चा कुछ कर सकता है। ऐसे ही छोटे छोटे 3rd 4th 5th फंक्शन होते थे। क्लास जैसे जैसे इसकी बच्ची की बढ़ती रही तो ये डांस के लिए होती थी। स्कूल में या घर पे जब डांस होता गाना चलता था ये डांस करती थी। तो ऐसे ही अपने मतलब चीज़ों को मतलब डांस को फॉलो करती रही। और ऐसी 6th क्लास में भी इसने पार्टिसिपेट करा था गिद्दे में फंक्शन में। तो ऐसे कंटिन्यू कर रही थी। तो ऐसे ही जब 8th क्लास में ब्राइट करियर स्कूल में पहुंची तो मुझे इसने बताया भी नहीं था कि KKHD वालों की टीम वहाँ पे पहुंची है और इसका फॉर्म फिल करा है। मुझे मतलब 10-15 दिन हो गए उसके बाद को मतलब फ़ोन आया KKHD वालों का कि मैम आपकी बेटी ने फॉर्म भरा है। मुझे इसने बताया भी नहीं था क्योंकि इसको फीवर था, ये शायद भूल गई थी। तो फिर मैंने इससे पूछा, कह रही हाँ मम्मा सब लोग भर रहे थे मैंने भी भर दिया। तो ये इसने भर दिया था। तो चलो हमें भी इसके साथ इसकी फ्रेंड थी उसके मिलके उसने दोनों ने फॉर्म इकट्ठे फिल करे थे। फर्स्ट टाइम इसने दोनों ने जो भी वहाँ पे मतलब सिलेक्शन डांस की हुई थी दोनों ने साथ में करा था। फिर वो लड़की वहाँ से अपना मतलब लीव कर गई थी, छोड़ गई थी। ये भी कह रही थी मम्मा आप रहने दो, अगर वो नहीं पैसों के कारण वो छोड़ गई थी, भी नेक्स्ट राउंड में फीस भरनी पड़ेगी इस चक्कर में, मम्मा आप रहने दो हमारे से नहीं हो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। मैंने कहा नहीं बेटा, आपको मतलब भगवान की कृपा से KKHD वाले आपको मिले, एक प्लेटफॉर्म मिला है कि आप कुछ करके दिखाएं, इसलिए आप कुछ करो। आपको टाइम मिला है, किसी के पास टाइम होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता, किसी के समय होता है, समय से पहले समझ आती है, समझ नहीं होता। तो दोनों चीज़ें तुम्हारे सामने एक टाइम पे ही हैं, आपके पास समय भी है, समझ भी है, टाइम भी है। तो इसको कंटिन्यू करो। तो 2 राउंड ऐसे ही कंटिन्यू करे। तो 3 राउंड में बड़ा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया भी है ना, जो घर के हालात थे, पैसों का मतलब सिस्टम नहीं हो पा रहा था। तब भी मैंने उस किसी ना किसी से ऐसे ले दे के इसको मतलब पार्टिसिपेट कराया कि मेरा बच्चा लास्ट राउंड में फाइनल राउंड में जा रहा है तो इसने कुछ करके दिखाना है। जो मैंने ज़िंदगी में स्ट्रगल किए हैं मेरी बेटी वो ना करे, इस करके मैं इसका सपोर्ट पूरा कर रही हूँ। क्योंकि भी आगे बेटियों को दिक्कत होती है, मतलब दिक्कत के लिए जब अगर कुछ बन जाएगी तो मेरी तरह तक धक्के नहीं खाएगी। जैसे शादी के बाद मुझे धक्के खाने पड़े, वही अकेले यहाँ पे लाइफ गुजारनी पड़ी, स्ट्रगल करना पड़ा, भी कैसे कहाँ से कैसे करके मैं अपने घर का सिस्टम चला रही हूँ। तो अभी इसके फादर आ गए हैं 5-6 सालों से, वो चलो अभी भी चलो फैक्ट्री में वर्क करते हैं हेल्पर का, उनको इन चीज़ों से कोई मैटर नहीं है। वो कहते हैं अभी तुम दोनों ये करो, मैंने नहीं पता है ये चीज़ों का, भी ये मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये मुझे अच्छी नहीं लगती चीज़ें। बट मैंने कहा भी बेटी का अगर इंटरेस्ट है तो मैं इसको पुशअप करूँगी, इसको आगे बढ़ने के लिए। बस मेरी यही तमन्ना है। बेटी लास्ट राउंड में जा रही है, भी इतना स्ट्रगल करा है कि रब की कृपा से बढ़िया मतलब
राउंड में फाइनल सिलेक्शन होके ही फर्स्ट डिवीज़न से अपने आप पोजीशन गेट करे, बस यही चाहती हूँ। आप KKHD वालों ने बड़ी यहाँ तक मेरी बेटी को हेल्प करी है अभी लेके आने की, भी शायद मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी यहाँ पे टीवी पे कभी आएगी भी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इनकी, ये सबको थैंक यू कहना चाहूँगी अपनी तरफ से। थैंक यू सो मच KKHD टीम, और थैंक यू सो मच गॉड, तो मेरी बेटी को यहाँ पे लाने के लिए। और मेरे तरफ से बहुत ही ज़्यादा गुड विशेष है कि बेटी आगे फाइनल में बढ़िया नंबर से पास हो जाए। बचपन में एक बार ना सर, ये बहुत ज़्यादा मतलब जब ये 2 साल की थी, जब मैं अकेली यहाँ पे रह रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब बीमार हो गई थी। मुझे ये लग रहा था कि शायद ये बचेगी नहीं, मतलब फर्श पे लेटे रहना इसका। हम यहाँ पे रह रहे थे, मतलब ऐसे ही टॉयलेट वॉशरूम ऐसे करती थी, कुछ खा पी नहीं रही थी। शायद मुझे यही लगता था कि शायद बचेगी नहीं। तो मैंने बड़ा ना भगवान से, माता रानी से मैं बड़ी अरदास करती थी कि मेरी बच्ची को ना जैसे कोई भी नहीं हो, मैंने कहा भी बेटी है, बड़ी मुश्किल से हुई है, तो इसको मतलब लंबी उम्र दे रब। अपनी तरफ से बड़ा ट्रीटमेंट कराया, पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा इसको एक एलर्जी टाइप की प्रॉब्लम हो गई थी जो 4-5 साल ठीक नहीं हुई। तो मैं अपनी तरफ से दिल छोड़ के हो चुकी थी। मुझे ये लगता था कि मेरे ये पास भी ना आए, ऐसी इसकी पोजीशन हो गई थी। कई बार तो ऐसा लगता कि दूर ही चली जाए, बट ये मतलब लास्ट में बड़ा मैंने मन्नतें मांगी, रब से वो करी, वह कैसे ना कैसे करके ये ठीक होगी। तो मुझे अच्छा लगा कि शुक्र है माता रानी का भी ये ठीक हो गई है, नहीं तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये अब गई भी, बिल्कुल ही ख़त्म था इसका काम, जैसे कि मुझे लग रहा था छोटे होते। बच्ची पढ़ाई में तो मतलब शुरू से ही मतलब बहुत होशियार थी। सारे जब मैं स्कूल में लगाई थी, बच्चे स्कूल में जब ABC बनाना नहीं सीखते, 2.5 साल में ये बड़ी अच्छी लिखना सीख गई थी, 1 2 3, जो भी ऑरल वर्क भी बड़ा अच्छा कर लेती। टीचर्स बहुत खुश थे, मैं खुद भी टीचिंग करती थी स्कूल में, तो इसको मैंने स्कूल में लगाया था। सब कहते थे कि मैम आपकी बच्ची बड़ी तेज़ है पढ़ने में। तो इसको जब प्री नर्सरी में थी तो फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट में LKG में तो फर्स्ट डिवीज़न लेके पास होती थी। तो मुझे लग रहा था कि शायद जो मेरे है मैं नहीं पूरा कर सकी, मेरे पेरेंट्स ने मेरी मतलब पीछे सपोर्ट नहीं करी, शायद ये मुझे अपना उसमें दिख रहा था कि मेरी वाली चीज़ों को ये पूरी कर सकेगी। तो मतलब पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, पढ़ने लिखने में कुछ भी कहो बहुत जल्दी कैचिंग कर लेती है। स्कूल के टीचर्स भी कहते हैं जैसे समझाओ वैसे ही करती है, प्रॉपर वर्क बड़े अच्छे, सब लोग इसे बहुत प्यार करते हैं। स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ती है और बढ़िया डिवीज़न लेके पास होती है। मैं परमात्मा का बहुत ज़्यादा धन्नवाद करती हाँ, माता रानी का बहुत ज़्यादा धन्नवाद करती हाँ कि मेरी बेटी फाइनल दे विच जा रही है, वो फाइनल मतलब पास होके आवे। तो मैं सारिਆਂ ਦਾ ही बहुत ज़्यादा धन्नवाद। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी मतलब फाइनल में जा रही है और उसको पास होके आए। मतलब स्कूल वालों को सबका ही बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा उसको गुड विशेष है कि फ़ाइनल में अपना बढ़िया परफॉर्म करे और पास होके आए। मेरा नाम अनुराधा है
ਕਲਪਨਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੰਮਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁੜੀਆ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਸਰਹੰਦ ਹੋਇਆ, 2 ਜਗ੍ਹਾ ਖੰਨੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਡਾਂਸ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਡਾਂਸ ਦਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੰਨੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸਨੇ ਡਾਂਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗੇਮ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੇਮ ਘੱਟ ਖੇਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਡਾਂਸ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿੱਚਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਅਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੰਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੂਲਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਮਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਟੈਪ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁੜੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਇਹ ਗੁੜੀਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਮੰਮਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, उन्हों का नाम और रोशन करे, मम्मी पापा का। मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा एक मिल में हेल्पर हैं और मैंने इनकी कंडीशन देखकर अपने में एक एम पैदा किया जो मेरा ड्रीम था कि मैं एक डांस कोरियोग्राफर बनूं और इनकी कंडीशन को अच्छी कर सकूं और अपना और अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकूं। जब हमारे स्कूल में कोई भी डांस होता था मैं हर एक डांस में पार्टिसिपेट करती थी और मेरे मम्मा को भी डांस करने का शौक़ था। उनको देख कर मेरे को भी डांस करने का शौक़ हुआ। एक दिन हमारे स्कूल में KKHD के टीम मेंबर आए थे जिन्होंने हमारे से फॉर्म फिल करवाए थे। मैंने भी वो फॉर्म को फिल किया है। उन्होंने हमको बताया KKHD शो एक मल्टी टैलेंट शो है जिसमें हर तरह का डांस, कोई भी सिंगिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिसको जिसका शौक़ हो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना टैलेंट टीवी पर दिखा सकता है, मोबाइल पर शो हो सकता है। मेरा भी बहुत बड़ा सपना था कि मैं टीवी पर आऊँ। फिर मैंने KKHD का डांस फॉर्म फिल किया, KKHD का डांस में फॉर्म फिल किया। फर्स्ट सेकंड राउंड मेरे सरहंद में हुए, थर्ड एंड फोर्थ राउंड मेरा खन्ना में हुए। अब मैं फाइनल में पहुंच चुकी हूँ। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मैं फाइनल जीत कर आऊँ, अपने स्कूल का, गाँव का, पूरी फैमिली का नाम रोशन करूँ। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKHD।